सरेंडर कर देता I हूँ। empty myself before you, O और मैं अपने God. आप को खाली करती हूँ आपके सामने। No more I, but you live in me, O और God. मैं नहीं, यीशु तू मुझ में जी। Urabasaka. Close your अपने eyes. आंखों को बंद करें And let the Lord help us to see the spiritual और realm. खुदावन हमारी मदद करे ताकि हम रूहानी बातों को Let देख the Lord सकें। help us to see His glory that is around the और church. खुदा हमें फजल करे ताकि हम उसके जलाल को देख And let the सकें। Lord help us to see His fire that is upon the और church. हम उसके उस आग को देख सके जो इस कलीसिया के ऊपर है। Urabasakaria. Close your eyes and keep on. Praise the Lord. Ask the Lord, Lord, give me your experience. Rika basaka raka. Irababa baba rose. Irabara saka raka boru. Ubabara sandara sanda. Iraborose. I release healing into your bodies. I release the power of God upon your और bodies. खुदा की कुव्वत उसकी सामर्थ आपके बदनों में आती शिफा के लिए। Hallelujah. Right now, the Spirit of the Lord, hallelujah, heal you. और अभी इसी वक्त खुदा का हाथ आपको छंगाई दे। Every bondage just be broken हर now. एक जुए, हर एक बंधन टूटे इसी वक्त। Every chains be broken एक now. बंधन है टूटे इसी वक्त यीशु मसीह के नाम Every से। lack be broken हर now. एक कमी इसी वक्त खत्म हो जाए। Every confusion out from your mind. हर एक गड़बड़ी की रूह इसी वक्त कैद कर देते यीशु मसीह के नाम से। I open your spiritual और eyes. आपकी रूहानी आंखें खुलती है यीशु मसीह के नाम I से। open your spiritual और ears. आपके रूहानी काने खुल जाते हैं यीशु मसीह के Urara नाम से। sakarase. Ubaba baba rosa. Urabara sanda. Prophesy over your और life. अपनी जिंदगी के ऊपर नबूवत करें। You can say, I will move forward and upward in the name of मैं Jesus. आगे के तरफ और ऊपर के तरफ बढ़ती हूँ यीशु By मसीह the के fire नाम of से। God, I move forward and upward in the name of Jesus. परमेश्वर के उस आग के जरिए मैं आगे के तरफ और ऊपर के तरफ चढ़ती By the हूँ। power of God, I shall be the lender. और यीशु मसीह का सामर्थ्य से मैं देने वाला हूँ. Uraba shakarika. Uraraba shanda. Prophesy. Prophesy over your life. Prophesy over your finance. Prophesy over your family. Prophesy over your children. Ribaba rasakara. Irabaraba shandara. Ubabarose. Irabaraba sandaraba. Uraborose. Ikabara sanda. You can say, I will trample upon serpents, scorpions, all the power of the enemy. In the name of Jesus, और हालेलुया, सांपों को बिच्छों को रोने का अधिकार खुदा ने दिया है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Keep on saying, I trample upon serpent and scorpions. I trample upon serpent and scorpions. I trample upon serpent and scorpions. I destroy every power of darkness. Ribara sakara se, irabaraba sandaraba, ubabara saka, rikabaro sende, iraboro sa, raboro se, iraboro sanda. Those who are having a sickness in your body, और जिनके शरीरों में बीमारी है, you can lay your hand upon your head or any part of your body और अपने हाथों को अपने सर के ऊपर या जहाँ पर भी बीमारी है वहाँ रख सकते हैं and call out that sickness. और उस बीमारी का नाम आप ले। For example, if it's asthma in your lungs, अगर आपके अंदर अस्थमा है तो आप कह सकते हैं। if you have a kidney problem, अगर किडनी की प्रॉब्लम है, if there is a diabetic problem, अगर अंदर डायबिटीज है, call out that sickness. और उस बीमारी का नाम लेके उसको पुकारें। For example, asthma. जैसे अस्थमा किसी को है You have to say, you wicked तो asthma. आप कह सकते तू विकेट अस्थमा, I uproot you from my lungs. तुझे मैं उखाड़ फेंक देता हूँ, मेरे लंग से बाहर चले I जा। burnt you out in Jesus' और मैं तुझे name. जला देती हूँ यीशु मसीह के नाम I में। release the healing of my और Father. मेरे खुदा का जो चंगाई को मैं हासिल करता हूँ, I receive and possess the healing. और मैं उस चंगाई को हासिल करता हूँ I यीशु मसीह के heal नाम my lungs. से। और मेरा जो लंग्स है वो हील हो जाता I है। apply the blood of Jesus upon my और lungs. मेरे लंग्स के ऊपर यीशु मसीह के कीमती लहू को मैं लगा देती So हूँ। whatever may be your problem, और जो कोई आपकी प्रॉब्लम क्यों ना हो, the problem has a name, और जो भी प्रॉब्लम है उसको एक नाम है, and you have authority. और आपको अधिकार दिया है, God has given you the authority to trample that name. और खुदा ने आपको इख्तियार दिया है उस नामों बीमारी को कुचलने के लिए। Hallelujah. Whatever is the problems, जो कोई आपकी प्रॉब्लम क्यों ना हो, hallelujah, right now name it. और उसका नाम लेके उससे पुकारे। Let me together destroy that अब problem. साथ में मिलके उसको हम तबाह कर देते
सकते Maybe हैं। the problem of debts, कर्जा का problem. हो सकता है आपकी जिंदगी में कर्जा है Hallelujah. From long years you are suffering from debts. और बहुत सालों से आप कर्जे में डूबे हुए हो The debts must die tonight. और आज वो कर्जे का आज आखिरी दिन होगा The Lord has anointed me break the debts. और खुदा ने मेरे को मसा किया है ताकि सारे वो कर्जे वो टूट जाए। So whatever is the debts before the Lord, bring before the Lord. जो भी आपके कर्जे आप खुदा के सामने लेकर Let me आए break the power of debt. और सारे उसकी सामर्थ को हम तोड़ दे यीशु मसीह के नाम Let में me break the chain of debts. और सारे उसके जो बंधनों को हम तोड़े यीशु मसीह के नाम से Whatever may be the debts. और जो कोई आपका कर्जा हो See them in your eyes. और अपनी आंखों से उसे देखे आप And join with me in the और prayer. मेरे साथ आप दुआ में एक हो जाए In the mighty name of और Jesus. आपका यीशु मसीह के पवित्र नाम I में come against all type of debts. और सारी इस कर्जे की रूह के इसके अगेंस्ट में आता हूँ The bank loan, credit card loans. और जो भी बैंक लोन है क्रेडिट कार्ड लोन है I मैं cancel. उसे कैंसिल कर देता हूँ I burnt it मैं उसको out. जला देता हूँ I uproot. और मैं उसे उखाड़ फेंक I देता am हूँ free from every debts. और मैं सारे कर्जों से आजाद हूँ I shall be the मैं lender. देने वाला बनूंगा I shall be the और मैं lender. देने वाला बनूंगा In Jesus' mighty यीशु name. मसीह के पवित्र नाम I में open the doors of finance. और मैं फाइनेंस के दरवाजों को खोल देता I हूँ open the doors of abundance. और फिर बहुत है के दरवाजों को मैं खोल देता In the हूँ mighty name of Jesus. यीशु मसीह के पवित्र नाम I में declare और मैं कबूल करता I am हूँ a millionaire. और मैं मिलियनर ही हूँ I मैं declare डिक्लेयर करती हूँ I am a मैं millionaire. मिलियनर ही हूँ In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम In में Jesus' name. यीशु मसीह के नाम I में will be fruitful मैं फलदायक and बनूंगा I will multiply. और मैं बढ़ूंगा I shall be a blessing to this church. और मैं इस कलीसिया के लिए बरकत बनूंगा I shall be a blessing to my और family. मेरे परिवार के लिए मैं बरकत बनूंगा I shall be a blessing to UAE. और इस यूएई के लिए मैं बरकत बनूंगा I shall be a blessing to और Pakistan. पाकिस्तान के लिए बरकत बनूंगा Let us pray for Pakistan. हम पाकिस्तान के लिए दुआ करें Oh Lord, you visit Pakistan. परमेश्वर तू पाकिस्तान को Let the visit glory कर। of God capture और Pakistan. परमेश्वर तेरे ग्लोरी तेरा जलाल पाकिस्तान Let the के ऊपर आ fire जाए। of the Lord capture Pakistan. पवित्र आत्मा की आग इस पाकिस्तान के ऊपर आ जाए We bless Karachi, हम कराची को ब्लेस करते हैं। Lahore, लाहौर Islamabad, Rawalpindi, Faisalabad. We open the heaven over the और cities. इनके ऊपर स्वर खुल जाए Let the glory of God capture the और cities. खुदा का जलाल इस सारे सिटीज के ऊपर आ जाए Let there be instant healings and miracles in the cities. और इंस्टेंट हीलिंग्स और मिरेकल्स हो जाए सिटीज Let the में Lord add 10 million souls from the cities to His kingdom. और खुदावन 10 मिलियन सोल्स को इस कलीसिया में जोड़ दे In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के पवित्र नाम Let में us bless Rahel and Babar. और राहेल और बाबर को bless Ubara करें। Sakariantoro Shanda. Lord, you have anointed Babar and Rahel to capture this city, so God. We pray, Yes, let your glory come upon them. Amen. Let your angels surround them. Yes, Lord. We put the wall of fire around them. Amen. Lord, you go before them Yes, and let they capture the city, so God. In Jesus' name. आमेन Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord। Welcome to your fellowship. और यह फेलोशिप में आपका स्वागत है Amen. आमेन Feel free to welcome the person next to you, saying, Welcome to your fellowship. अब आपके आस बाजू में जो भी है उसको कहे कि वेलकम है यह फेलोशिप में Amen. Amen. Praise God. Good to see you in the house of God. और आप सबको खुदा के घर में देखिए खुशी है This is the Urdu fellowship. और ये उर्दू फेलोशिप है I think this is the fourth service of this week. और ये हफ्ते का चौथा सर्विस है Hallelujah. Saturday we joined for Hindi service. और सैटरडे को हिंदी कलीसिया होती है And at 10 o'clock Sunday morning we joined for इंग्लिश Nepali fellowship. और 10 बजे नेपाली फेलोशिप होती है And 11 o'clock we joined for English fellowship. और 11 बजे इंग्लिश फेलोशिप होती है And 3 o'clock we joined for a Kannada fellowship. और 3 बजे कन्नड़ा फेलोशिप होती है And right now we are in the Urdu fellowship. और अब इस वक्त हम उर्दू फेलोशिप Let में us thank the हम Lord. खुदा को शुक्र What करें a grace. और खुदा ने What हमें a फजल दिया है grace. उसने हमारे पे What a grace. खुदावंद फजल What a तेरे grace. फजल के लिए The शुक्रिया। Lord says, और खुदा कहता I will है, multiply this और fellowship. खुदा उस कलीसिया को
को Oh, multiply I will करेगा। multiply this और fellowship. खुदावन इस कलीसिया को The multiply millions करेगा। will come. और लाखों The लोग आएंगे। millions will come. लाखों लोग The आएंगे। millions will come. लाखों लोग आएंगे In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन। Please be seated in the house of God. आप सब बैठ सकते हैं खुदा की हुजूरी में। Amen. आमेन। Are you happy? आप सब खुश हैं? If you're not happy, hallelujah, start to praise God. और अगर खुश नहीं है तो खुदा की तारीफ करना शुरू करें। As you start to praise God, जब आप खुदा की तारीफ करोगे the joy of the Lord comes in you. और खुदा की खुशी आपके अंदर आ जाएगी। Amen. आमेन। So this is the month of baptism. और ये जो महीना है बपतिस्मा का महीना है। Amen. आमेन। You want to learn baptism, right? आप बपतिस्मा के बारे में सीखने वाले हो। Okay, those who have taken the baptism, they also can learn the baptism. और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है वो भी सीख सकते हैं बपतिस्मा के बारे में। And those who have not taken the baptism, hallelujah, you can give your names to Adnan. और अगर जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो अपना नाम अदनान को देना। God willing, this month end or 1st of the August, we are planning the baptism. और ये महीने के आखिरी में नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में बपतिस्मा का सभा होगा। So those who have prepared themselves, for them only, we are giving the baptism. जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है उसी को हम बपतिस्मा देते हैं। So requirement number 1, और पहला रिक्वायरमेंट ये होगा you have to read Romans chapter 6. और रोमियो की किताब 6 पढ़ना है And you have to read at least 10 और times. कम से कम 10 बार तो आपने पढ़ना है And you have to make 10 points. और उसमें से 10 पॉइंट बनाना है। And then you have to give your name to Adnan. He will give you the recorded teaching of the water baptism. और अपना अपना नाम अदनान को देना है, वो आपको रिकॉर्डेड मैसेज देगा बपतिस्मा It के is बारे a में। 45 minutes recorded Bible study. और 45 मिनट्स का बाइबल स्टडी है You have to listen again and again, again and again. और उसको बार बार आपने सुनना है And you have to make it 10 points. और उसमें से 10 पॉइंट बनाना है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज गॉड। इतना मुश्किल है तो baptism? ये मुश्किल नहीं है. As you learn from the word of God, जब आप खुदा के कलाम से सीखोगे the God start to communicate with you. और खुदा आपसे बात करना शुरू करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. 10 साल के बाद भी अगर कोई पूछेगा आपने क्यों बैप्टिज्म लिया, you will have an answer, hallelujah, to tell them why you took the baptism. और 10 साल के बाद भी कोई आपको पूछेगा कि आपने बपतिस्मा क्यों लिया है तो आपके पास जवाब होगा कि आपने क्यों लिया So है। let me take one scripture, hallelujah, why we take the baptism. और एक कलाम लेंगे, हम देखेंगे क्यों हमने बपतिस्मा लेना चाहिए। So 2 Corinthians chapter 6, और दूसरा कोरिन्थियन 6 hallelujah, we will read from verse number 18, 16, 17, 18. और 16, 17 और 18 को पढ़ेंगे। Okay, let the word come in the scripture. We are going to meditate on that scripture and we will come to know why we should take the baptism. Okay, can we read? Okay, I will read in English and someone can help me in Urdu or Hindi. And what agreement as the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. Everyone say, we are the temple of the living God. हम परमेश्वर के मंदिर हैं। Amen. और एक बार, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और एक बार, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। बाजू वालों को बोलो उसका नाम आते तो जैक्सन, जैक्सन, you are the temple of the living God. आप कह सकते हो सोबिया, सोबिया, आप परमेश्वर के मंदिर हो। Amen. Hallelujah. बाजू में बोल दिया ना, क्या बोला? You are the temple of the living God. And what God is says in verse number 16, I will dwell in them. I will walk among them. I will be their God. They shall be my people. मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलता फिरता रहूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। So when you see the heart of God, जब आप खुदा के दिल को देखते हो He always want to stay in you. और खुदा हमेशा यही ख्वाहिश करता है कि वो आपके अंदर बसा रहे। But what people they do, they will keep God in the church. और बहुत लोग होते हैं जो खुदा को, परमेश्वर को कलीसिया में रख देते हैं And they keep God in Jerusalem. और वो उस खुदा को जेरूसलम में रख देते But हैं। that's not the will of God. ये खुदा की मर्जी नहीं है। The God says, I don't want to live in man-made temples. और खुदा कहता है कि मैं जो इंसान ने बनाए हुए उस मंदिर में मैं नहीं रहना I चाहता। want to live in my temple, मैं- that you are His temple. मैं उस मंदिर में रहना चाहता हूँ जो आप है और आप वो मंदिर है। So you may ask why God want to live in you. और आप पूछेंगे कि खुदा आपके अंदर क्यों रहना चाहता So है? He want to empower you. ताकि वो अपनी कुव्वत से, अपने सामर्थ से आपको भरे। He want to baptize you.
और वो आपको आग का बपतिस्मा देना चाहता He है wants to make you His voice. और खुदा चाहता है कि आप उसकी आवाज बने He wants to raise the dead through और you. आपके जरिए वो मुर्दों को जिंदा करना He चाहता है wants to set the nation through you. और कौमों को देशों को वो आजाद करना चाहता है आपके जरिए Through your shadows, He wants to heal the sick. और आपके परछाई गिरने से लोग चंगे हो जाएंगे Amen. आमीन So God wants to come and dwell in you. इसीलिए खुदा आपके अंदर आकर बसना चाहता है Therefore He says, repent, इसीलिए वो कहता है कि तौबा कर मन फिरा die to sin, और गुनाह के लिए पाप के लिए मर जा and obey my और word. मेरे कलाम को तू सीख और उसके ऊपर चल As you repent, जब आप तौबा करते हैं you make the place to God to come and dwell in तो आप you. खुदा के लिए जगह बनाते थे ताकि खुदा आपके अंदर आके बस सके As soon you repent, और जब आप तौबा करते मन फिराते हैं oh Lord, और आप कहते हैं I खुदावन hate everything that is abomination to और you. खुदावन वो सारी बातों से मैं नफरत करता हूँ जो तुझे पसंद नहीं है I refuse to touch those things. और वो उन चीजों को मैं छूना भी नहीं चाहता I refuse to think those things. और मैं सोचना भी नहीं चाहता I उन बातों refuse को। to speak those things. और उन चीजों को मैं बात भी नहीं करना चाहता I हूँ। repent. और मैं तौबा करता हूँ मन फिराता I हूँ dwell in your और word. मैं तेरे कलाम में जीना चाहता I हूँ dwell in your और word. तेरे कलाम के अंदर मैं रहना चाहता हूँ As you take a decision, जब यह आप एक डिसीजन ले लेते हो miracle starts. और आपकी जिंदगी में मुआवजा होना शुरू होता है Miracle starts. और आपकी जिंदगी में मुआवजा होना शुरू हो You want जाता to see है what is that miracle? आप देखना चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कौन सा मुआवजा We होता are है going to come back to the scripture. I will take the scripture and come back. We'll read Romans chapter 5, verse number 5. और रोमियो की किताब 5:5 को हम पढ़ेंगे As soon you say, Lord, I am ready to take the baptism. जब आप कहते हो खुदावन मैं तैयार हूँ बपतिस्मा लेने के लिए I am ready to love you with my whole और मैं heart. पूरे दिल से तुझसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ Your decision, और जो आप ये डिसीजन लेते हैं your desire और ये आपकी ख्वाहिश जो है attracts the heaven. तो स्वर्ग आपके तरफ आकर्षित होती है What I said? मैंने क्या बोला? Your desire, जब आप ख्वाहिश करते हैं your decision और जब आप एक डिसीजन लेते हैं attracts the heaven. तो स्वर्ग आपकी तरफ खींच के आता है Hallelujah. Let me read this scripture, please. और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है Amen. The Bible says God has poured out His love और through His Holy Spirit. और खुदा ने अपने प्यार को जाहिर किया उसके पाखरू के जरिए Amen. We heard many times, love the Lord with all your heart. और बहुत बार हमने सीखा है खुदा पूरे दिलो जान से परमेश्वर से प्यार करे Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. और अब अपने प्रभु परमेश्वर के पूरे दिलो जान से तू प्यार कर As soon you say, Lord, I am ready to love और आप you, जब कहते हो खुदावन मैं पूरे दिल से तुझसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ God will pour out His love inside और you. खुदा अपने प्यार को आपके अंदर उंडेल देगा And through the love of God, और उस खुदा के उस प्यार के जरिए through the help of the Holy Spirit, पाखरू की मदद से you will start to love God. तो आप परमेश्वर से प्यार करने के लिए शुरू करोगे Hallelujah. Your decision. और आपका डिसीजन है Tell your friend, your decision. मेरा डिसीजन Your choice. और आपकी चॉइस Your desire. और आपकी जो ख्वाहिश Lord, है I want to love you. और आप कहेंगे खुदावन मैं पूरे दिल से तुझसे प्यार करना Lord, चाहता I हूँ want to obey you. पूरे मैं अपने आपको आपके आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ As you say, और जब आप ये कहते हो as you open your जब heart, अपने दिलों को आप खोल देते हो the Lord will pour out His love inside you. और खुदा अपने प्यार को आपके अंदर उंडेलेगा With the love of God, और उस प्यार के जरिए you will start love God. हम खुदा से प्यार कर सकते With हैं the love of God, और खुदा के उस प्यार से you start to love your wife. और आप अपने बीवी से प्यार करोगे With the love of और God, खुदा के उस प्यार से you start to love your और children. आप अपने बच्चों से मोहब्बत करोगे With the love of और God, खुदा के उस प्यार से you start to love yourself आप अपने आप से प्यार करोगे and love your neighbor. और उसी तरह से अपने नेबर से भी प्यार As करोगे a man of God, I prophesy over your life. और खुदा का खादिम होते हुए आपकी जिंदगी में नब्वत करता हूँ As you open your heart जब tonight, अपने दिलों को आप खोलोगे आज रात को your heart never be empty. और आपका दिल कभी भी खाली नहीं रहेगा It will fill with the Holy वो Spirit. पाक रूह से भर जाएगा It will fill with the love of और God. वो खुदा के प्यार से भर It जाएगा will fill with the power of और वो God. खुदा की कुवत और सामर्थ से भर It जाएगा will fill with the fire of और God. वो खुदा की आग से भरा रहेगा And God will transform you और खुदावंद आपको पूरी तरह से बदल देगा as a flame of fire, और आपको आग का शोले बनाएगा as a pillar of fire. और आप आग का खंबा Tell बनोगे your friend, it is your decision. और ये आपका डिसीजन है It is your desire. और ये आपकी ख्वाहिश से
It होगा is your decision. और ये आपके डिसीजन से It होगा is your decision. और ये आपका डिसीजन है। Amen. आमेन। Let me go back to hallelujah. I think 2 Corinthians. Hallelujah. Go back to that. Hallelujah. The scripture. Why we should take the baptism. और फिर हम सीखेंगे क्यों हमने बपतिस्मा लेना है। Okay, let us read that scripture once again. 16 If you don't take baptism, अगर आप बपतिस्मा नहीं लेंगे वो बुद्धों का घर है. If you don't take the baptism, अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते हो you are a house of cursed. और आपका जो घर है वो श्राप का लालतों का घर है, Because you rejected God. क्योंकि आपने खुदा को रिजेक्ट किया है। God start to visit you through His gospel. और खुदा आपके पास आता है मुलाकात करने के लिए उसकी खुशखबरी के जरिए। God start to visit you through His blood. और खुदावंद आपके पास आता है उसके लहू के जरिए। God start to visit you through His words. और खुदावंद अपने कलाम के जरिए आपके पास मुलाकात करने आता But you है। closed your heart. जब आप अपना दिल को बंद कर देते हो Therefore, you became the house of idols. तो तभी आप भूतों का घर बन जाते हो। And the house of idols is a cursed house. और जो मूर्ति पूजा का घर है, जो वो घर आइडल्स का जो घर है उसमें श्रापित है, उसमें लालतें हैं। And the Bible says nothing will enter to the heaven, the cursed one. और जो कोई लालच से भरा हुआ है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। It is your decision made you a cursed person. और आपके डिसीजन ने आपको एक लालच का इंसान बना दिया, Because you close your heart. क्योंकि आपने अपने दिलों को बंद कर दिया है। Therefore, you became a cursed man on this earth. इसीलिए आप इस पृथ्वी पर श्रापित मनुष्य बन गए। But that's not the good news. पर ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। As soon you open your heart, जब अपने दिलों को हम खोल देते हैं and as soon you surrender your life, और जब अपने जिंदगी को आप सरेंडर कर देते हो, the Lord says you became a temple of the living God. तो खुदा कहता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, उसके मकदस हो, He start to live in you. और वो आपके अंदर जीता है, He start to speak to you. और वो आपसे बात करता है, He start to change your characters. और वो आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को बदल देता है। Let me read once again the scripture. और फिर से हम उसको पढ़ेंगे। और क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, चुनाचे खुदावंद फरमाया, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा। Amen. So this is the desire of God. और ये खुदा की ख्वाहिश है। The God want to dwell in you. खुदा चाहता है कि वो हमारे अंदर बसे और हमारे साथ रहे। So how you can allow God to dwell in you? किस तरह से आप अलाउ करेंगे खुदा को कि वो आपके अंदर बसे, आपके साथ रहे? Point number 1. पहली बात है, By repentance. जब आप तौबा करते हो, मन फिराते हो, When you say, Lord, I hate sin. जब आप खुदा से कहते हो कि मैं पाप से नफरत करता हूँ, I गुनाह से hate everything that is abomination to you. जो कुछ तुझे नापसंद है वो सारी बातों से मैं नफरत करता हूँ। As you start to say, जब आप इस बातों को बोलते हो, the fire of God will cleanse you. और खुदा की आग आपको साफ करेगी। Let me read. Continue. 17. और इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि Yes. उनमें से निकलकर अलग रहो Amen. और नापाक चीज को ना छुओ, Amen. तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा Hallelujah. और तुम्हारा बाप होऊंगा Amen. और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। Amen. ये खुदावंद कादिर मुतलिक का कौल है। Hallelujah. Once again from 17. इस वास्ते खुदावंद Okay, everyone फरमाता repeat है, after the sister. इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, Ah. उनमें से अलग निकल कर रहो Ah. और नापाक चीज को ना छुओ, Ah. और मैं तुमको कबूल कर लूंगा आमीन। और तुम्हारा बाप होऊंगा आमीन। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। आमीन। ये खुदावन कादिर मुतलिक का कौल है। Amen. If you take baptism, जब आप बपतिस्मा लेते हो, the God will be your father. और खुदा आपका बाप बन जाता है, He will dwell in you. और वो आप आकर आपके अंदर बस जाएगा। If you say there's a no need to take baptism, जब आप कहते हो कि मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, you are rejecting the visitation of God in your life. जो खुदा चाहता है कि वो आपसे मुलाकात करे, आप तो उसको रिजेक्ट कर देते हो। Only one person can say, I don't want baptism, that Jesus Christ. और एक ही शख्स है जो कह सकता है मुझे बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, वो है यीशु मसीह। But still he said, let it be as per the will of फिर God. भी यीशु मसीह ने कहा कि खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। Amen. आमीन। Hallelujah. So Jesus known why baptism is very important. इसीलिए यीशु जानता था कि बपतिस्मा क्यों जरूरी है। Let me read from Romans chapter 6.
verse number 6. Why the baptism is important. इसलिए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 6:6 बपतिस्मा क्यों जरूरी है। This all scriptures are in your Bible, by the way. और ये सारे जो भी स्क्रिप्चर है वो आपके बाइबल में है। Only you don't have a time to read. इतना ही है कि आपको पास समय नहीं है उसको पढ़ने के लिए, Therefore, you are losing what God has prepared for you. इसीलिए आप खो देते हो वो चीजों को जो खुदा ने आपके लिए तैयार करके रखा है। God has prepared eternal life for you. खुदा ने आपको हमेशा की जिंदगी बना के रखी है, God has prepared the nations for you. और खुदा ने आपके लिए कौमों को तैयार करके रखा हुआ But है। you are busy to get some dollars and dirhams. और आप बिजी हो जाते हैं डॉलर और दिरहम्स कमाने में, And hallelujah. And you don't get the time to read the word. और आपके पास समय नहीं होता है खुदा का कलाम पढ़ने के So लिए। why we should take the baptism? क्यों हमने बपतिस्मा लेना है? Let me read it together. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might die, done away with, that should no longer be slaves of sin. Let me read. चनाचा हम जानते हैं कि हाँ। हमारी पुरानी इंसानियत सब लोग बोलो पुरानी इंसानियत. पुरानी इंसानियत Old man, ओल्ड मैन old nature, ओल्ड नेचर, demonic nature, डिमोनिक नेचर, old nature, ओल्ड नेचर, carnal nature, कार्नल नेचर, rebellious nature. रेबेलियस नेचर, उसका जगह किधर है? As per the Bible, it is crucified because that is against God. जो God का against है, उसका जगह क्रूस है. Why it was crucified? There is answer. Yes, sister. उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार सब हो लोग जाए। बोलो गुनाह के बदन. गुनाह का बदन, और एक बार, गुनाह का बदन, और एक बार. गुनाह का बदन। There is a body of flesh. और- This is the body of flesh and blood. और हम जो बदन को देखते हैं वो शरीर और मांस का है, But there is another body control this body. पर एक और बॉडी है जो इस शरीर को कंट्रोल करती है। So every person who are in this world, और हर शख्स जो इस दुनिया में है, educated, uneducated, no problem, his body is controlled by the sin. और जो भी है जो पढ़ा लिखा है नहीं है किस तरह का भी है, उसके पीछे एक बदन काम करता है, वो है गुनाह का बदन। So as long you put on the body of sin, जब तक आपका जो बदन के ऊपर वो शरीर ये शरीर गुनाह के का बदन ऊपर जब गुनाह का बदन रहता है, फॉर Control एग्जाम्पल करता मैंने ये बदन के ऊपर शेड डाला है, जब तक ये बास आएगा कोई मेरे पास नहीं आएगा. सही है? जब तक ये बास आएगा आप लोग मेरा पास नहीं आएगा, दूर से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करके जाएगा. नेक्स्ट वीक देखेंगे करके. Same way, as long you put on the body of sin over this flesh, और इस बदन के ऊपर जब आपके ऊपर वो गुनाह का बदन आ जाता है, no blessing will come. और उस बदन के ऊपर कोई बरकत नहीं आती है। The Bible says God is not deaf to hear your prayers. और खुदा बहरा नहीं है कि वो आपकी आवाज को नहीं सुनता है, God is not blind to see your और problems. खुदा अंधा नहीं है कि वो आपको देख नहीं सकता है, God's hand is not short, so He cannot touch you. और खुदा का हाथ छोटा नहीं कि वो आपको छू नहीं सकता है, But you put on the body of sin. क्योंकि आपके ऊपर जो गुनाह का बदन है इसके वजह से, You have put the rebellious spirit. और आपके अंदर नाफरमाने की रूह है इसके वजह से, Therefore, the God cannot bless you. इसीलिए खुदा आपको बरकत नहीं दे सकता है, Therefore, heaven is closed for और you. इसीलिए स्वर्ग आपके ऊपर बंद है। Therefore, baptism is important. इसीलिए बपतिस्मा लेना जरूरी So, है, as soon you repent, और जब आप तौबा कर लेते हो, everyone say power of God, और खुदा की कुवत और the सामर्थ, fire of और God, खुदा की आग, the blood of Jesus, और यीशु मसीह का लहू, break the body of sin. और वो जो शरीर के जो गुनाह के बदन को वो तोड़ देती है। So you may be seeing some people, those who have taken the baptism, they are sin no more. और जो फिर बाद में आप बपतिस्मा लेते हैं वो गुनाह में नहीं चलते हैं, They had the girlfriends before. और पहले उनके पास अलग अलग गलत रिश्ते थे, They were going to all the wrong places. और वो सारी गलत जगहों पे जाते थे, Even they don't want to drink alcoholic. Someone was forcing them. और वो पीना नहीं चाहते थे, फिर भी कोई ना कोई उनको फोर्स करता था पीने के लिए। But when they repented, पर जब उन्होंने तौबा किया, मन फिराया, the power of sin is broken. जो गुनाह का जो सामर्थ्य है वो टूट जाता The है, body of sin is burnt और out. जो गुनाह का जो बदन है वो जल जाता है। Therefore, baptism is important. इसीलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। If you don't take baptism, जब हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं, how much big you preach, और कितनी बड़ी आप सुसमाचार प्रचार करें, how nice you sing, और कितना अच्छा भी आप गीत गाए, how maybe you are rich,
और कितना भी आप धन दौलत क्यों ना कमाते होगे, sin demands death upon you. जब गुनाह होता है तो गुनाह की मजदूरी मौत है, And the death will take you to the hell. और जो मौत है वो हमें नरक में लेकर जाती है, And afterwards, no one can reverse it. और फिर बाद में उसे कोई बदल नहीं सकता है, Now is the time of salvation. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन नजात का दिन है, Now you repent और आज आपने तौबा करना and है, say, Lord, I am ready. और आपने कहना है खुदा मैं तैयार हूँ, Let the body of sin die. और जो गुनाह का बदन है वो खत्म हो जाए। I don't want no more longer be a slave of sin. मैं गुनाह का गुलाम नहीं रहना चाहता I हूँ, want to be the slave of और righteousness. मैं रास्त बास का धार्मिकता का मैं स्लेव बनना चाहता Let me हूँ। read verse number 7, 8, 9. Let me see what is there. For he who has died has been. फ्रेड फ्रॉम सिन, Okay, सब लोग. For he who has died has been. फ्रेड फ्रॉम सिन। Yes, baptism is your death. और जब बपतिस्मा लेते तो तभी आपका मौत हो जाता है, And when you repent, you died to sin. और जिस दिन आपने तौबा किया उस दिन आप गुनाह के लिए मर गए, And in our culture, those who died, we bury them. और हमारे कल्चर में जो मर जाता है उनको हम दफना देते हैं। Hello? So if you truly died to sin, अगर आप सचमुच गुनाह के लिए मर गए हो the baptism is your burial. तो जब बपतिस्मा लेते हैं वो आपका दफनाने का रस्म है। So once you are buried, जब आप दफनाए जाते हो sin cannot claim your soul. और फिर बाद में गुनाह आपके बदन के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता The है, death cannot come upon your life और जो मौत है आपकी जिंदगी पे आ नहीं सकती है, because you died with Christ. क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ मर गए The हो। rebellious man is crucified on the cross. और जो रेबेलियस मैन है, जो नाफरमान जो बदन है वो मर चुका The है, body of sin is cut off from your life. और जो गुनाह का बदन है वो आपकी जिंदगी से टूट चुका You है। are no more slave of sin. आप आज के बाद से गुनाह के गुलाम नहीं हो, You are seed of God. और आप ये खुदा के बीज बन जाते हो। For he who has died has freed from sin. और जो कोई मर जाता है वो गुनाह से आजाद हो जाता There is है। only one way you can free from sin. एक ही रास्ता है जो गुनाह से हमें आजाद करता You है, must die. हमने मरना होगा, You must die to sin. हमने गुनाह के लिए मरना होगा, There is no other way. और दूसरा कोई जरिया और रास्ता नहीं है। You may argue with me, Pastor, 2 हफ्ते पहले सिखाया कि खुदा का लहू, यीशु का लहू सारे गुनाह से माफ करता है। साफ करता है। आज क्या हो गया पास्टर जी, अभी बोल रहा है कि लहू किधर है? लहू उसको मिलता है जो गुनाह को मरता है। Hallelujah. If you die to sin, then the blood will cleanse you. अगर आप गुनाह के लिए मर जाओगे तब यीशु मसीह का लहू आपको धो देता है। If you live in sin, अगर आप गुनाह में जीते हो, मानते 10 बार गाओ लहू लहू। अच्छा है सुनने के लिए। लहू आपको साफ नहीं करेगा। जब चोर को अंदर रख के you have to die to sin. हमने गुनाह के लिए मरना है। How to die? किस तरह से आप मर सकते हैं? Repentance. एक ही है तौबा कर कर। When you do a true repentance. जब आप पूरे दिल से आप मन फिराते हो, तौबा करते हो, Lord, I walked in the ways of the worldly ways. और मैं दुनिया के जैसे चला और दुनिया जैसी चाहती थी वैसे मैं चल रहा था, I lived as the lust of this flesh. और जो शरीर की अभिलाषाओं में मैं जी रहा था, I was lazy, oh God. और मैं लेजी था, I was not reading your word. और मैं खुदा तेरे कलाम को नहीं पढ़ रहा था। Once in a month, जैसे मूड हो गया मैं चर्च में आता था। This is sin before God. और जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं तो ये गुनाह है खुदा के सामने, You cannot give God the second place in your life. और खुदा को दूसरा दर्जा आप दे नहीं सकते अपनी जिंदगी में। If you are giving God the second place, that means you are given someone first place. अगर खुदा को दूसरी जगह दिया है, इसका मतलब है अपनी पहली जगह किसी और को दी है। That is means idol worship. और जो भी खुदा को छोड़कर किसी को पहली जगह देते हैं वो मूर्ति पूजा है। बहुत लोग बोलते हैं कैथलिक लोग आइडल वर्शिप करते हैं। मैं नहीं जानता हूँ वो लोग करते हैं कि नहीं करते, बट अगर आपने आपका जिंदगी में खुदा को दूसरा जगह दिया है, दर्जा दिया है, यू आर आइडल वर्शिपर। और जो खुदा को दूसरी जगह देता है तो वो मूर्ति पूजा है, वो बुतों की पूजा करता है। So if you are given the God the first place, अगर खुदा को आपने पहली जगह दी है you are the first person to take the water तो baptism. आप पहले शख्स होंगे जो बपतिस्मा लेंगे, You will obey और आप ओबीडियंस में चलोगे, because God want to dwell
dwell in you. क्योंकि खुदा चाहता है कि वो आपके अंदर जिए He want to use you. और वो चाहता है कि वो आपको इस्तेमाल करे He want to fill you with His glory. और खुदा अपने जलाल से अपने महिमा से आपको भरना चाहता है। Let's continue why we should take the baptism. Yeah, read. इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। Okay, continue. बस जब हम मसीह में मर गए, Yeah, 9 please. Yeah, thank you. 9 verse number 9 सब लोग पढ़िए. Knowing that जानते हैं कि क्योंकि ये मसीह जानते हैं, having मरे हुओं में से been जी raised the dead, फिर मरने का नहीं, dies no more, फिर मृत्यु की death no प्रभुता longer नहीं होती। has dominion over him. Okay, continue. Maybe next scripture we'll see. For the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Yeah, continue. क्यों मसीह जो हुआ Ah. एतबार से तो एक बार हुआ, मगर जब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। Okay, thank you. Yeah, continue. इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। Okay. There is a scripture, it says, hallelujah, when we take baptism, और कलाम कहता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं the sin have no hold over our life. तो पाप और गुनाह को हमारे जिंदगी के ऊपर कोई इख्तियार नहीं The रहता death have no hold over our life. और मौत को कोई अधिकार हमारे जिंदगी पर नहीं The रहता है। Romans 6:6 says, you should no longer be a slave to sin. और रोमियो किताब 6:6 कहता है कि आप गुनाह के गुलाम नहीं हो, But God has given you victory over sin. पर खुदा ने आपको गुनाह के ऊपर फतह और विक्ट्री दी है। So when you receive the victory over sin, और कब आप गुनाह के ऊपर फतह पाते हो? when you take the baptism. जब आप बपतिस्मा लेते हो। So check your heart. इसीलिए आप अपने आप को जांच लें, Who is stopping you not to take the baptism? कौन क्या बात है या क्या चीज है जो आपको रोक रही है बपतिस्मा लेने से? If your thoughts are stopping you, अगर आपके सोच विचार आपको रोक रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, you are the enemy of your life. तो आप अपने जिंदगी के दुश्मन हैं। You are sending your soul to hell, तो not आप- Jesus. और आप अपने रूह को नरक में भेज रहे You हो। are worse than a devil. तो आप शैतान से भी वर्स्ट है, Because devil is not stopping you take the baptism. क्योंकि शैतान आपको रोक नहीं रहा है बपतिस्मा लेने के It लिए। is your own thoughts that blocking you to take the baptism. ये आपकी ही सोच है आपको रोक रही है बपतिस्मा लेने के लिए। So who is sending you to the hell? कौन आपको नरक में भेज रहा है? It is you, और वो आप ही है, because you don't love yourself. क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करते। If you truly love yourself, अगर आप अपने आप से सच्ची प्यार करते you will हैं, escape from the wrath of God. आप खुदा के उस खौफ से, उस जजमेंट से आप दूर भागोगे। आप सोचते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ पास्टर जी, आगे भी कुछ नहीं होएगा, गारंटी नहीं है। When you trample the blood of Jesus, the wrath of God is waiting upon you. जब आप खुदा यीशु मसीह के खून के कुचलते हो तो आपके ऊपर रहम नहीं होती है। Right now, the grace is waiting. It is covering your life. जो खुदा का फजल है, जो अनुग्रह है, जो हमें कवर करके रखता है। It is the prayer of your church is covering you. और बहुत बार जो कलीसिया की और जितने दुआ करते हैं वो आपको कवर करते हैं। It is the compassion of the God is waiting for और you. खुदा की दया है जिसके वजह से हम हलाक नहीं होते हैं। The day you reject the और grace of God, जिस दिन हम उस अनुग्रह, उस फजल को रिजेक्ट करते हैं, your life will be destroyed. तो आपकी जो जिंदगी है वो हलाक हो जाती It है। will start from your health. और फिर बाद में वो आपके हेल्थ से शुरू होती It है, will start from your finance. फिर आपके फाइनेंस से शुरू होती है। Because you rejected God's visitation. क्योंकि जब खुदा ने आकर आपको मुलाकात करने की कोशिश की तो आपने उसको रिजेक्ट किया। It is not the devil who is destroying you. और ये शैतान नहीं है जो आपको डिस्ट्रॉय करता It है, is your pride is destroying ये you. जो आपका घमंड है जो आपको रोक देता है। Because you rejected God's visitation in your life. क्योंकि आपने खुदा को आपके पास आने से रोक दिया है। आपने अपने आप को बोला कि बैप्टिज्म लेना जरूरत नहीं है. Because you spoke against the will of God. जो खुदा की मर्जी थी उसके खिलाफ आप बात करते हैं उसकी वजह So से। now is your time. इसीलिए आपका भी समय है। Check your heart. इसीलिए अपने दिल को जांचें, Why you are not taking baptism? क्यों आपने बपतिस्मा नहीं लिया है? Because you kept the sin in your heart. क्या आपने गुनाह को अपने दिल में रखा है? Because you want to enjoy the sin. क्या आप गुनाह में मजे लेना चाहते हो? As long you keep the sin in you, जब तक गुनाह आपके अंदर होगा, the sin will demand the death upon your life. क्योंकि जो गुनाह की जो मजदूरी है
मौत है वो आपको वो डिमांड करती And रहेगी। once you go to hell, और एक बार जब नरक में जाओगे no one can pray for your soul. और कोई भी आपके रूह के लिए दुआ नहीं कर सकता है। अगर कोई बोलता है आपका रूह के लिए मैं दुआ करके आपको स्वर्ग भेजेगा, वो नंबर 1 डोंगी है। No one can save your soul other than the blood of Jesus. और कोई भी हमको बचा नहीं सकता है कि यीशु मसीह का लहू खाली हमें बचा सकता है। If you repent, जब हम तौबा करते हैं, if you repent, जब हम तौबा करते हैं, blood of Jesus will wash you. यीशु मसीह का लहू हमें धो देता है God's life will come inside और you. खुदा की जिंदगी हमारे अंदर बहती है It will produce obedience in you. और हमारे अंदर ताबे की रूह आएगी That obedience lead और जब ताबे की रूह हमें लीड करेगी, in the water baptism. हमें पानी के बपतिस्मे की तरफ लेकर जाएगी। And once you are taken the baptism, एक बार जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हो, you are united with Christ. आप यीशु मसीह के साथ एक रूह हो जाते You हो। are united with Christ. आप यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हो, Devil cannot claim you तो शैतान आपके लाइफ के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता है, because you are sealed by the Holy Spirit. क्योंकि पाक रूह की सील आपके ऊपर आ जाती है In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Let us pray. आइए हम दुआ करें। Father God, खुदा बाप, I thank you for your word. खुदावन तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं We saw you want to dwell in us. और हमने देखा कि आप हमारे अंदर बसना चाहते हो And Lord, you ask us to repent. और आपने कहा है कि हम तौबा करें Help everyone to repent, oh और God, खुदावन हर एक को तू दिल दे ताकि हम तौबा कर सके, so they can receive your forgiveness. ताकि हम सब गुनाह की माफी को पा सके, And Lord, they can receive the heart of obedience. ताकि उनको ताबे की रूह मिल सके, And they take water baptism in the name of Father, Son, and the Holy ताकि वो Spirit. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले सके, In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के पवित्र नाम में। Amen. आमीन।